that. We are going to celebrate Father's Day coming Sunday. Honestly, personally, I do not believe in Father's Day and whatever. Can I remove this mic? I don't need Yes, it. yes. Yeah, sure. So I personally do not believe in these days and all that, because for me, you don't need days to wish your loved ones. But again, I'm sounding like an old uncle. But this day, this year came out as an opportunity for me, because I've been given this chance to speak about the lessons that I got from my dad. Now, it's no secret that I was very, very close to my father, and he has had I can be a textbook of major daddy issues. अगर कोई साइकोलॉजी की अगर कोई बात करे तो एनिमल मूवी शायद कहीं ना कहीं मेरे पे ही बनी है, इस तरह से आप बोल सकते हैं. But it was always a pleasure, to be around with that man, and I always say that my dad was my best friend. He definitely was my best friend, and हर लम्हा उनके साथ बैठ के, like आप कैसे अपने दोस्त के साथ hang out करने की कोशिश करते हो, that is what I used to feel about my father. Every evening I used to look forward to go and sit in his room and talk to him, because he would drop these nuggets, which lessons जो मेरे बन के रह गए. मैं इसके ऊपर स्लॉट नहीं, मैं इसके ऊपर 3 घंटे की ट्रेनिंग ले सकता हूँ. But today I will be focusing on few. I have not counted them, but I have a few lessons that I have carried with them. Now, like every child, I always thought that, like while growing up, जो teenage years थे, rebel थे, जो years थे, I always used to think कि भाई ये मेरे को क्या सिखाते रहते सारा टाइम. तो मार्क ट्वेन का एक कोट है, जब मैंने पढ़ा था तो I was like, wow, this resonated so much with me, and I'm sure आप भी कई लोग ये इस बात को फील करते होंगे. When I was a boy of 14. My father was so ignorant that I could hardly stand him, and that was very true. जब मैं छोटा था मुझे लगता था यार इनको कुछ पता ही नहीं है, सब कुछ मुझे मालूम है. But when I got to be the age of 21, I was astonished at how much he has learned in 7 years. Now, what this quote actually means is, मेरे पिताजी 7 साल में कुछ नहीं सीखे, but I started appreciating whatever he used to do for me all the time. And today, when I'm 39, that appreciation has grown a lot more. When I am a father, when I am a business owner, when I am somebody who is networking, so that appreciation has gone more. So with that, I would like to talk about the first lesson. The first lesson that he gave me in life. This is something that he taught me very early in life. He said, "Ki beta, like the day I got married, this lesson was taught to me. I coincidentally got married when I was 25. So everything worked. The reason I'm saying coincidentally is that because everything what he said happened for me. He said, "बेटा तुम्हारी जो जिंदगी होती है ना वो 4 parts में जी जाती है. Your life is lived in 4 parts. Normally अगर माना जाए तो human beings have a lifespan of 100 years. Normally माना जाता है. तो जो first 25 years होते हैं बोले वो तेरे अपने. तूने अभी तक 25 साल जो भी तूने किया वो तेरा अपना. Like these 25 years were your 25 years and you spent your life in that. जो next 25 years होते हैं, जो second 25 years होते हैं, that are for your family and your business. मतलब हम में से मोस्टली अभी सब लोग इस क्वाड्रेंट के अंदर अपनी लाइफ के अंदर है, whereby we have got to spend time with our family and our business. फिर जो थर्ड पार्ट ऑफ आपकी जो लाइफ का होता है, जो थर्ड जो क्वाड्रेंट है आपकी लाइफ के अंदर, दैट इज फॉर समाज. जो आप 50 से 75 साल के लिए आप जो जीते हो, तो दैट इज व्हेन यू गो आउट और जाके आपको समाज के प्रति जो भी आप दे सकते हो, अपनी सोसाइटी के प्रति जो भी आप दे सकते हो करना. और जो लास्ट क्वाड्रेंट होता है, दैट इज टुवर्ड्स द गॉड, स्पिरिचुअल, रिलीजन, जो भी आपको मानना है आप उसकी तरफ देते हो, अगर भगवान ने आपको वहाँ तक पहुँचा दी. So this is basically how you've got to divide your life, and it has really helped me to focus. Like for example, like I said, I'm 39 now. तो मेरे अभी 10 साल और समाज के बाकी है, 10 साल मेरी अपनी फैमिली के बाकी है, और उसके बाद I already spoken to my family about this कि 50 के बाद मैं सोसाइटी का हो जाऊँ. I will belong to the samaj and I will belong to the society. It helps you to put into perspective what you are doing and why you are doing. Then next lesson, प्रभात भाई जानते हैं, ये मेरे फादर का बहुत फेमस डायलॉग था. हम पहले इसका मजाक उड़ाते थे, बट इसके पीछे बहुत गहराई छुपी हुई थी. पापा हमेशा बोलते रहते थे कि मैं बूट भी पॉलिश करूंगा तो मेरे जैसा बूट पॉलिश करने वाला कोई नहीं तुमको मिले. मतलब पॉइंट ये नहीं था, उन्होंने कभी भी जीवन में बूट पॉलिश नहीं किया, ना करते. हम हमेशा से बोलते हैं हमारी फैमिली कभी भी, हमारी कोई दुख भरी कहानी नहीं है. वी डोंट हैव अ सैड स्टोरी. ठीक है, वी वर बोर्न विद गोल्डन स्पून्स विद डायमंड स्टडेड हैंडल्स. हम लोग बहुत प्रिविलेज रहे हमेशा से. बट एक चीज उन्होंने हमेशा सीखी है कि बेटा जो भी काम करो ना, बेस्ट बनने के लिए करो, मतलब मत करो. आधे मन से देख लेता हूँ, कर लेता हूँ, ये करते. ही यूज्ड टू से समथिंग व्हिच मेरे को बहुत पिंच करता था. एंड एज अ टीचर जब मैं बात अपने बच्चों को भी बोलता हूँ, मुझे कई बार रियलाइज होता है, बट इट इज सो ट्रू. सेकंड प्लेस इज ऑलवेज फॉर द फर्स्ट लूजर. बोले जिस दिन भी तू सेकंड आता है ना, तू दुनिया का पहला लूजर है. उन्होंने ये बात मुझे सिखाई गई. ना आप बोल सकते हो साइकोलॉजी के जो खासकर जो न्यू एज जेनजी जो लोग हैं कि नहीं देयर इज सो मच टॉक्सिसिटी इन दैट एंड ऑल दैट, बट द लेसन दैट आई गॉट इनटू इज दैट आई ऑलवेज प्ले टू विन. आई एम एंजॉइंग द गेम. मैं हमेशा गेम को एंजॉय करता हूँ, बट जो भी काम करना है, फॉर एग्जाम्पल ये प्रेजेंटेशन भी बनानी है तो मेरी प्रेजेंट टकाटक होगी, मैं ऐसे ही खाली मुंह उठा के नहीं आता. सो दैट इज व्हाट ही टॉट मी कि अगर बेटा
लाइफ में जूता भी पॉलिश करे ना तो तेरे जैसा कोई बूट पॉलिश करने वाला नहीं होना चाहिए. दिस इज समथिंग दैट आई लर्न फ्रॉम. अनदर थिंग, ये काफी विरोधाभास था बट यही बात उन्होंने मुझे सिखाई थी. पहली बात तो जेब में पैसा नहीं चाहिए धंधा करने. नॉर्मली व्हेन आई टॉक टू क्लाइंट्स आल्सो, नॉर्मली आई टॉक टू यंगस्टर्स आल्सो, साहब काम करना है पर कैपिटल नहीं है, बिजनेस नहीं है, पैसा नहीं है. अशोक भाई कोई बड़ी से बड़ी डील करने जाते थे, मैं तो साक्षी रहा हूँ, प्रभात भाई उसके अंदर साक्षी रहे, जेब में कुछ नहीं होता था. कहाँ से पैसा आएगा मालूम नहीं, जिगर चाहिए. ऐसा भी नहीं है कि फिलोसॉफी से डील हो जाती है. आपके अपने आप फाइनेंसेस आते हैं, पीपल इन्वेस्टर्स मिलते हैं, सब्सिडीज मिलती है, बैंक्स आपके पास खड़ी रहती है, प्रोवाइडेड आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, हौसला होना चाहिए कि जैसे कच्छ के अंदर 1988 के अंदर ये बोलने का दम था कि भाई मैं यहाँ पे रिसोर्ट बनाऊँ, आई विल क्रिएट अ ग्रीन रिसोर्ट यहाँ पे. उसके लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड अ लिटिल बिट ऑफ इंसैनिटी. एंड उसी के साथ मिलती मिलती बात कि आप बिजनेस कभी भी है ना पैसे के लिए नहीं करते. दिस इज समथिंग यू शुड कीप ऑन टेलिंग मी ऑल द टाइम. ही सेड बेटा पैसा तो आएगा ही आएगा, हाथ का मैल वैल वो सब तो अलग बात है. पैसा अगर आप अपना काम शिद्दत से कर रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति बिना पैसे के काम करता है. बट दैट शुड नॉट बी अ स्कोर कीपर. जैसे मैंने एक बार पहले भी ये बात बोली थी, जेफ बीजोस, बिल गेट्स, इलॉन मस्क, ये लोग अब क्यों काम कर रहे हैं? इनके पास इतना पैसा है कि लिटरली 3 जनरेशन स्पेंड नहीं कर पाई. बट यू डू बिजनेस और यू गेट आउट ऑफ द मॉर्निंग एवरी डे जस्ट बिकॉज यू एंजॉय द पार्ट ऑफ इट. नेक्स्ट लेसन that I got from is that ये दोनों चीजें साथ में मिलती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, योर वर्क इज नॉट योर आइडेंटिटी. आप शर्मा रिसोर्ट्स के मालिक हो या क्वालिटी पेट्रोलियम्स के मालिक हो, आप ये वो आपकी आइडेंटिटी नहीं. अशोक भाई को जो लोग पर्सनली जानते हैं उनकी आइडेंटिटी बहुत अलग है फ्रॉम हिज वर्क. रिसोर्ट तो बना के दे दिया, उनकी एक्चुअली क्रिएट एन आइडेंटिटी विच इज बियॉन्ड योर प्रोफेशन. उनकी आइडेंटिटी थी ही वॉज एन एग्रीकल्चरिस्ट, जिनको वो खेडूत थे, दिल से पशु लवर थे, एनिमल लवर थे, गाय उनको पालना पसंद था, उनको सभी तरह के. नॉट मेनी पीपल नो दैट ही वाज अ पैशनेट डॉग लवर. जो मुझे डॉग्स का जो क्रेज है, आई गॉट दैट फ्रॉम माय फादर. सो ही ऑलवेज यूज्ड टू से कि भाई अपनी एक आइडेंटिटी अपने काम से निकालो. और आज मैं जो टीचर बना हूँ वो कहीं ना कहीं उस लेसन के कारण ही बनाऊँ कि बोले भाई तू शर्मा रिसोर्ट्स का मालिक है, ये तेरी आइडेंटिटी नहीं, ये तो तेरे को मिली है, ये तो तेरी विरासत में मिली. लाइक फॉर एग्जाम्पल, वी आर बॉर्न विद आवर रिलीजन. हम हिंदू, ब्राह्मण, जो भी आपकी आइडेंटिटी है, यू आर बॉर्न विद इट, पर आप अपनी आइडेंटिटी में ग्रो करते हो. सिमिलरली फैमिली बिजनेस ओनर्स के लिए बहुत जरूरी है कि आपका धंधा खाली अगर आपको इसी नाम से जाना जाता है कि अनुज शर्मा केवा तो शर्मा रिसोर्ट वाला, देन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. आपकी आइडेंटिटी अलग बननी है. एंड ही वाज वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट यू नो व्हेन आई बिकेम अ प्रोफेसर, ही सेड हाँ अब तूने अपनी आइडेंटिटी बनी. दिस इज समथिंग दैट यू डिड एंड दैट इज व्हाट ही ऑलवेज यूज्ड टू से, कीप अ लो प्रोफाइल. आज मेरे परिवार के अंदर भी ये बात होती है, कैन वी नॉट अफोर्ड अ BMW? डेफिनेटली वी कैन. कैन वी नॉट अफोर्ड मर्सिडीज? कैन वी नॉट अफोर्ड एनीथिंग? जो भी वोल्वो आप गाड़ी बोलो, हम सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं. बट पॉइंट इज दैट क्यों, वाई, किसको दिखाना? आप जब गाड़ी के अंदर बैठते हो तो विंडशील्ड से आपको वही दिखता है जो आपको होंडा सिविक में भी दिख रहा होगा और मर्सिडीज में भी दिख रहा होगा. आज पहनने के लिए यही मैं अरमानी का भी सूट पहन लेता है, ये साई बाबा सूट वाला मैंने पहना हुआ है. व्हाट एम आई वेयरिंग? साई बाबा सूट वाला है वेयरिंग. बट द पॉइंट ऑफ द मैटर इज दैट समथिंग दैट यूज्ड टू टेल मी, जो मुझे हमेशा लगता था, बोले अशोक भाई जब गाड़ी में से उतरता है ना तो गाड़ी की ब्रांड बनती है. अशोक भाई Hyundai एक्सेंट चलाता है, ये इस तरह से ब्रांड बनती है. सिमिलरली आज मेरी मदर को वो बोलते थे, बोले विजय बाला शर्मा ने, मेरी मम्मी का नाम विजय बाला शर्मा है, बोले विजय बाला शर्मा ने अगर अमेरिकन डायमंड्स की इयरिंग्स भी पहने होंगे ना तो वो लोगों को रियल लगेगी. एंड दैट इज ट्रू. दैट इज समथिंग दैट आई हैव बिगन टू रियलाइज. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ माय वाइफ इज कैरिंग अ 4 LV बैग, फेक LV बैग अगर लेके भी चल रहे होंगे तो भी लोगों को लगता है नहीं सोनिया शर्मा कैरी कर रही है तो रियल ही होगा. सो ऑलवेज यू आर द ब्रांड. आप ये देखिए कि आप जो कर रहे हो, जो बोल रहे हो, जैसे कर रहे हो, इट हैज टू रेजोनेट विद व्हाट यू आर डूइंग. Till the last day, till he closed his eyes, or till the last day, till he stopped, he was reading, learning. And ये फोटो मैंने कल जब देखी ना, even though it is an AI generated image, ये फोटो जब मैंने देखी ना मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे डैड के बेड साइड की फोटो. हमेशा पढ़ रहे होते, हमेशा. He's always on a tablet, he was always on his phone, he was always reading a book, and even when his फैकल्टीज when started diminishing, लास्ट 10 दिन के अंदर जब उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी, तभी भी वो अपने टैबलेट के ऊपर कुछ वो पॉडकास्ट या कुछ ऑडियो लगा के रहते थे. अरे भाई मुझे पता है मैं 10 दिन में मरने वाला हूँ, फिर भी सीख रहे. That is what he always said, that keep on learning, forever be a student. And today I am very thankful to one thing, कि मैं जो भी कर रहा हूँ, like today also most of you know that I am pursuing my PhD at this age, and
doing my business and all that, that is thanks to my father. It's not that he inspired me, he enabled me. मैं हमेशा से उनको बोलता था कि आपने मुझे नहीं, जहाँ पे ऐसी बातें होती है कि 20-25 साल में लड़कों को बोल दिया जाता है कि कमाने पे आ जाओ, ये करने पे आ जाओ, मुझे ये बोला गया कि नहीं बेटा तेरे को जितना पढ़ना है पढ़, मैं बैठूँ, मैं देख रहा हूँ तुझे. That is something that he gave me, and this curiosity has helped me forever in my life. It has helped me that attitude कि भाई जो भी काम होगा सीख लेंगे, कर लेंगे. Finally, the last lesson that I got in the last part of his life is that celebrate your life as well as your death. Most of you came to the prayer meeting where my after my father's demise and all that. So यही चीज मैंने एक बार वहाँ पे लोगों की सीखी, because our family had a call that we didn't want to be a दुखी वाली prayer meeting हमको नहीं करनी थी. हम शर्मास, हम we like to celebrate everything in our life. एंड वहीं पे मैंने ये रियलाइज़ किया कि किसी को भी ये याद नहीं रहता कि आपने कितने पैसे कमाए, आप शर्मा रिसोर्ट वाले कौन हो. लाइक ऑल द थिंग्स दैट पीपल स्पोक अबाउट इन दैट प्रेयर मीटिंग वाज दैट कि उन्होंने मेरी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट की. दैट इज द लास्ट लेसन दैट आई गॉट फ्रॉम हिम इवन आफ्टर ही डिपार्टेड दिस वर्ल्ड. कि तेरे को अनुज इस तरह से अपनी ज़िंदगी जीनी है, तेरे को इस तरह से अपनी लाइफ जीनी है, दैट पीपल विल ऑलवेज रिमेंबर फॉर व्हाट यू डिड. तूने कितना कमाया, तूने कितने रिसोर्ट बनाए, तूने कितने धंधे खड़े किए, वो नहीं, तूने कितनों की लाइफ टच की, वो इंपॉर्टेंट करता है. अगर मुझे मौका मिलता और मैं अगर उनको एक लेसन दे पाता सामने से, तो दिस इज समथिंग दैट आई वुड हैव लाइक टू टेल हिम. ये मैंने थोड़े दिन पहले ही मैं एक जेम्स क्लियर का न्यूज़ लेटर में सब्सक्राइब करता हूँ, उसके अंदर एक कोट आया था. दिस इज समथिंग दैट आई वुड हैव टोल्ड माय फादर. कि कभी कभी खाली ये मिस करता था कि भाई प्रॉबेबली अगर उनके साथ थोड़ा टाइम और स्पेंड कर लिया करता या थोड़ा टाइम रहते, तो यही बात उनको बोलना चाहता हूँ. और जो मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स कहीं मेरी उम्र के आसपास के जो लोग बैठे हैं, याद रखना 20 years from now the only people who will remember that you work late are your kids. समाज के अंदर कोई नहीं देखने वाला कि आपने 20 घंटा काम किया, 16 घंटा काम किया, रात को 11 बजे तक ऑफिस में बैठे हुए थे. सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चे याद रखेंगे कि जब मुझे मेरे पापा की जरूरत थी तो मेरे पापा यहाँ पे थे नहीं. ही वॉज डूइंग वर्किंग समथिंग. So this is one thing that I would have liked to tell him. Thank you so much. Thank you for listening to me patiently, and I hope this was